ریڈیو پاکستان سامعین پیش خدمت ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان۔ مذاکرے کے اس سلسلے میں آج کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور انسانوں کی صحت۔ پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ السلام علیکم۔ ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی صحت۔ ماحولیاتی تبدیلی سے مراد عالمی آب و ہوا میں اہم طویل مدتی تبدیلیاں ہیں۔ دنیا بھر میں ماحول، سورج، زمین اور سمندروں، ہوا، بارش، صحراؤں میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا اثر یہ ہے کہ بحر الکاہل کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت طوفانوں کو جنم دے رہا ہے، جو زیادہ زور سے اڑتے ہیں، زیادہ بارشیں برساتے ہیں اور زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں سمندری بہاؤ کو حرکت دیتے ہیں، جو انٹارکٹیکا کی برف کو مائع بنا دیتے ہیں، جس سے سمندر کی سطح بلند ہوتی ہے۔ دنیا کو اس وقت جہاں کئی مختلف مسائل کا سامنا ہے، وہیں ایک بڑا مسئلہ موسمیاتی تبدیلی کا ہے، جو اس وقت بہت تیزی سے دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی زمین کی ماحولیاتی حالات میں تبدیلی کا نام ہے، جو کہ اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں موسمیاتی تبدیلی عالمی سطح پر خطرناک صورت اختیار کر رہی ہے اور آنے والے دور میں یہ دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ زمین اور زمین پر رہنے والی مخلوق اس گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہے۔ ہم نے مدعو کیا ہے محترم ڈاکٹر سوجومل میگواڑ۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جیوگرافی ڈپارٹمنٹ سندھ یونیورسٹی جامشورو میں اور اسپیشلسٹ ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات اور ان سے پیدا ہونے والے امراض کے حوالے سے آپ سے ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے اگلے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر گلزار عثمان۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں لیاقت یونیورسٹی جامشورو میں، آپ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ ان سے ہم امراض اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم محترم ڈاکٹر سوجومل میگواڑ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اس وقت ایرا چل رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کا، اس کا ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور آنے والے دور میں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ جس کو ہم موسمی تبدیلی کہتے ہیں، اس کا جو اثرات ہے وہ ٹیمپریچر کا بڑھنا ہے۔ جی یقیناً دنیا میں اگر دنیا کا میپ دیکھو نا، اس کا جو سینٹرل ایریا وہ ریڈ کا ہوگا۔ ریڈ کا مطلب یہ خطرناک ہوگا، انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک ہوگا۔ اسی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر 2.5 بڑھ گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ اب اس پہ جو لائف ہوگی نا، کچھ ایسے لوگ فار ایگزامپل جو 32 پہ لیونگ تھنگ، اینیمل، پلانٹ، انسان وہ زندے ہے، اگر وہ 32 ہوگا تو وہ کچھ تو مریں گے، ظاہر ہے۔ اچھا کچھ مریں گے اور کچھ بچیں گے، اس کو بیماریاں ہوگی۔ اچھا اسی بیماریاں پھر وہ ڈفرینٹس آئے گی، ڈفرینٹ بیماریاں ہوگی، ڈفرینٹ جو کو ہوا سے ایک آتی ہے ہماری نیچے سے، ہم گدلان اوپر بھیجتے ہیں، وہ گدلان ڈائریکٹ سولر ریڈیشن کی وجہ سے وہ اندر انسان کی باڈی میں آ جاتی ہے۔ یا ویسے ہی جو زمین ہے، جتنی اس کو گرمی دینے چاہیے تھی انسان کو، اسی گرمی اس نے زیادہ دے دی ہے۔ اچھا اسی گرمی سے جو نیچے پلانٹ ہے وہ مرے، اور زمین کی گرمی سے مل کر جو اوپر ریز جا رہے ہیں، وہ اور زیادہ خطرناک، اور زیادہ خطرناک ہے۔ اس کو ہم یہ سمپلی کہتے ہیں جو زمین کو ٹکرا کے واپس ہوتے ہیں نا، وہ خطرناک ہوتے ہیں، جس سے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں ٹھکرائے ہوئے لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو اس طریقے سے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا ہے، ہم لوگوں کو ریسرچ نہیں ہوتی ہے فار ایگزامپل کہاں پہ ایشو ہے، تو اب دنیا پہ اس پہ اسپیڈ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، مگر اڈاپٹ کرنے کے وہ اسپیڈ سے ہو رہا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ جو ہمارا اوپر کا ایک لیئر ہے اوزون، وہاں اوپر جو ہے زیادہ آکسیجن ہے۔ اچھا وہ آکسیجن اس کا فارمولا O2 ہے، جو نارمل ہمیں چاہیے تھی، اب وہ O3 میں کنورٹ ہوگا، تو وہ ظاہر خطرناک ہوگا، تو اسی وجہ سے اب وہ جو لیئر اوپر ہے جس کو ہم اوزون کہتے ہیں، وہ ٹوٹ رہا ہے مگر حد سے زیادہ۔ اگر ایک بار اگر دگنا ٹوٹے وہ اس کو 2 بار، یہ جو ٹوٹتا ہے 20 سالوں میں، 20 سے 30 سالوں میں 127 بار ٹوٹ رہا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پا سکے، تو ظاہر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو اس طریقے سے کیا اگر جو ہمیں ٹیمپریچر چاہیے باڈی کو، لیونگ تھنگ کسی کو بھی چاہیے، پلانٹ ہے، جو پلانٹ ہے، انسیکٹ بھی ہے، تو
वो हमारे सारे सिस्टम में ये सारी चीज चाहिए, प्लांट चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, रेप्टाइल चाहिए, एनिमल चाहिए और इंसान चाहिए, एक सर्टेन वो चाहिए, सर्टेन लेकिन चाहिए। ये उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये अब जाहिर है इसमें खतरनाक है। खतरनाक है। इंसान तो कभी कभी बच सकता है, जी जी, ठीक है, लेकिन बच ये रहा है, दूसरे बचा फर्क हो, उसके साथ दूसरे जो कुछ लाई है, जो एनिमल जीते हैं वो ज्यादा मर गए। जानवर हो, चरिंद परिंद हो, शजर हो, उन सब के लिए ये उनकी हयात के लिए बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब यही है, हम लोग को जमीन हमें चाहिए, अर्थ है, अर्थ पे अगर ईमानदार से बात करें ना, जी जी, इंसानों का कंट्रीब्यूशन इतना कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अगर इंसान इत्तेफाक करने इधर उधर हो गए, जी जी, इतना नुकसान नहीं होगा। अगर परिंदे, जी जी, जीत, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, एनिमल मर गए ना, तो ये तो तो बहुत उसके ज्यादा खतरनाक वो- ज्यादा जी, होगा, क्योंकि क्योंकि उनके उनकी होने से- फैमिली ज्यादा है। उनकी फैमिली ज्यादा और उनके होने से बहुत सारे हमें फवायद भी हैं, जो जाहिर है खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल, ये सारा आपने- जो क्लाइमेट चेंज का इतना इम्पैक्ट है हम पे, उसका हम तो अशरफ अल मखलूक कहते हैं, हम लोग वाइज है, विजडम है, सही है। सोचते हैं, इसी वजह से हम लोग को फील होता है। इससे बहुत सारे एनिमल देखो खत्म हो गए, जी हाँ, जाहिर है वो उनका असर होगा, कोई असर उस उनकी पे वो- कंट्रीब्यूशन है, उनका एहतियाती हमारे तदाबीर या हिफाजती इक़दाम नहीं कर वो सके। भी नहीं कर सकते, इस वजह से ये बड़ा असर होता है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुलजार साहब से हम पूछना चाहेंगे कि ये जो माहौल में तब्दीली हुई है, आप चूँकि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, सो इससे ज़ाहिर है हमारी इंसानी ज़िंदगी पे जो असरात हुए हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, और फिर इससे पैदा होने वाले अमराज के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे रेडियो पाकिस्तान, ये एक अहम मौजू है, इस पे ये मुज़ाकरा यकीनन एक जो इससे निकलेंगे पॉइंट्स निकलेंगे वो हमारे जो सामीन हैं उनके फ़ायदे में होंगे, बहुत काम में आएंगे। प्रोफेसर सुजो साहब ने जो बात की कि क्लाइमेट चेंज का जो मज़र है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब बढ़ता चला जा रहा है, उसकी असरात जो है ना वो दुनिया पे आना शुरू हो गए हैं। असरात तो हर तरह के होते हैं, हशरातुल अर्ज़ से लेके हमारे जितने भी जितनी हयात जो भी इंसान की हैं वो सब होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डायरेक्टली नुकसान इंसानी सेहत को होता है, चूँकि हम इस धरती में रहते हैं और यहाँ पर जो भी यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी माहौल बनता है, पानी है, हवा है, ज़मीन है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जब इंसान इस माहौल में रह रहा है तो उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं वन और अदर वे। तो मौसमी तब्दीलियाँ जो हुई हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ है, उससे कुछ तो ऐसी असरात हैं जो डायरेक्टली सेहत पे पड़ते हैं, जैसे कि मौसमों की शिद्दत, शदीद गर्मी हो जाना, शदीद सर्दियाँ पड़ जाना, या मौसमी तगय्युर से क्या हुआ है कि आजकल जो पहले हमारा मौसम सरमा जो स्टार्ट होता था अब वो डिले हो जाता है, काफ़ी डिले हो जाता है। बारिशों का, मानसून की बरसातें हैं जो पहले जो उनका शेड्यूल था उसमें तब्दीलियां आई हैं, ठीक है, और कभी कभार तो सर्दियां जाके अप्रैल तक चली जाती हैं। तो ये सारी जो तब्दीलियां हुई हैं उससे क्या हुआ है कि हमारी सेहत डायरेक्टली मुतासर होती है। गर्मी का, सर्दी का और हवा का इसका असर पड़ता है ना। जैसे हीट स्ट्रोक को आप देख लें, गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में हम अपने शहरी इलाकों में ख़ास तौर पे और देही इलाकों में भी हमने ये देखा है कि सैकड़ों अमवात तक हो गई हैं कि वो एकदम जो टेम्परेचर के बढ़ने से, तो ये डायरेक्टली उसके असरात हैं। और एक और डायरेक्टली असरात हमने अभी देखे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, दीगर नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग डिस्प्लेस होते हैं, तो एकदम जहां उनका घर बार और उनकी इमलाक को नुकसान होता है, वहां उनकी सेकंड स्टेप पे जो सबसे ज़्यादा शदीद मुतासर जो चीज़ होती है वो होती है इंसानी सेहत, क्योंकि अब उनको वो शेल्टर नहीं रहता, वो घरों से बाहर निकल आते हैं, कैंप्स में चले जाते हैं, कहीं और जाना पड़ता है, कहीं और चले जाना पड़ता है। अच्छा, बारिश के बाद वो जो जमा होने वाला पानी है, वो उस पानी में एक तो सैनिटरी इश्यूज़ होते हैं, हम कहते हैं वाश, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के इश्यूज़, साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बीमारियां पैदा करने वाले पैथोजेंस हैं, उनकी बढ़ोतरी और उनकी अफजाइश वो भी असरअंदाज होती है। जैसे मच्छर बहुत हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मच्छरों में फिर मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जैसे आजकल डेंगी बुखार पहले हमारे यहाँ इतना नहीं पाया जाता था, गुज़िश्ता एक दिहाई से इसमें बतदरीज इजाफा आता जा रहा है। तो ये सब मौसमी तगय्युर की वजह से इनकी अफजाइश के जो तरीक़ाकार तब्दील हुआ और उनमें चेंजेस आ गए। यहाँ तक कि कोविड को आप देख लें, पैंडेमिक जो अभी कोविड है जिससे अभी हम निबर्द आज़मा हुए हैं, लेकिन कंप्लीटली दुनिया अब तक नहीं निकल पाई है, उसका भी शुक्र है काफ़ी हद तक उस पर
काबू पाया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो वैक्सीन की वजह से और फिर पूरी इज्तिमाई जो दुनिया की कोशिशें थी उनसे हम काफ़ी बचत में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जबकि दूसरे ममालिक में तो और भी ज़्यादा नुकसान हुआ। एग्जैक्टली अच्छा, उसकी भी अगर हम जाके फुट प्रिंट्स देखेंगे, अगर हम जाके उसके असबाब पे जाएंगे तो वही मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो पैथोजेंस हैं, जो वायरस है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जेनेटिक चेंज आता है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का हिस्सा होता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, शॉर्ट टर्म, इमीडिएटली और फिर डिलेड, हर तरह से सेहत को चैलेंजेस होते हैं और सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर सोजोमाल से हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि जब ये मौसम तब्दील होता है, इसके आपने इतने असरात बताएं और यकीनन बहुत सारे ये ख़तरनाक हैं इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जान के लिए, और जो भी हयात है ज़मीन पर, चाहे वो इंसान हो, गुर्रा अर्ज़ पे जो ज़िंदा हैं, उन सब के लिए ख़तरनाक है। तो ये जब मौसम तब्दील होता है और फिर इतना ख़तरनाक अगर हो जाए, ख़ास तौर पे अब जो गर्मी के मामलात बढ़ रहे हैं, फ्लड के मामलात बढ़ रहे हैं, तो अमराज भी इससे मुख्तलिफ नए भी पैदा हो रहे हैं। एक तो रूटीन के हमारे जो अमराज हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुछ नए अमराज भी पैदा हो रहे हैं, या ये कि दीगर अमराज अब ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। पहले इतना नहीं हुआ करता, जैसे डेंगू है वो पहले इतना नहीं हुआ करता था, अब ज़्यादा होने लगा है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो मीनिंग ये है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वो गर्मी ज़्यादा होगी, जी हाँ, जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड है वो ज़्यादा कोल्ड है। इसका मतलब ये हॉट गोइंग टू हॉटर, कोल्ड गोइंग टू कोल्डर। तो ये तो और ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा सीरियस, क्योंकि उसी में जो लोग रहते हैं, एक जो इंसान है खुदाई तरफा एक ताकत दी हुई, वो एडाप्शन करते हैं, कुछ एडाप्शन करते, कुछ करते नहीं। अच्छा, एक डॉक्टर गुलजार साहब ने जो अच्छी बात ये कि जो कोविड है उसमें खुदाई तरफ से हमें फ़ायदा हुआ है। अच्छा, हमें फ़ायदा ये होता है, हमारे गर्मी ज़्यादा थी तो हम लोग बच गए, हम आदी थे, हम गर्मी के आदी थे। बिल्कुल सही। और दूसरी बात जो हम लोग यूज करते थे, नमक ज्यादा करते, उसी वजह से हमें नुकसान नहीं हुआ इतना। मौसमों के तब्दीली की वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला हुआ है दुनिया में जो ओवरऑल एक क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम हुई है। और जैसे अगर हम अभी की सिचुएशन ले लें पाकिस्तान और ख़ासतौर पे सिंध में कि वहाँ फ्लड है। अब फ्लड क्या है? क्लाइमेट इंड्यूस्ड एक फिनोमेना है। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो ज़मीन है जहाँ हमने गंदम काश्त करनी थी, अगर वो ज़मीन ही अब तक फारिग नहीं हुई काफ़ी जगहों पे ना, फ्लड का वाटर अब तक वहाँ स्टेगनेट है, तो अब क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये डिलेड इफेक्ट होगा, क्रॉप हमारी क्रॉप कम होगी, हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना होगा। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से ना सिर्फ ये कि माल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाई किल्लत की खुद की बीमारी, लेकिन उसके साथ इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। और ख़ास तौर पे बच्चे या बूढ़े या ऐसे लोग जो वैसी अदर मज़ीद कुछ और बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक बात हो जाएगी ना। तो इसको भी हम उसी से लिंक करेंगे कि ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की ही मरून मिन्नत है। उसकी वजह से कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आ जाते हैं और कुछ इनडायरेक्ट और लेट से उसका हमें नतीजा सामने आता है। डॉक्टर सोजोमाल, आप क्या समझते हैं कि ये जो असरात हमारी ज़िंदगी पे हो रहे हैं, ज़ाहिर है इससे अमराज भी हो रहे हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं कि उन एहतियाती तदाबीर से या एहतियाती इक़दामात से हम उनसे कुछ बच सकें, कुछ कम कर सकें अपने रेशो को? अच्छा, ये सही है। अगर एक जो अफेक्ट होता है एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। जी। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अच्छे हम लोग कर सकते हैं। अगर फ्लड आया तो उसको रिहेबिल किया या फौरी तौर पे जो भी किया हमने, वो होगा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ऐसा फ्लड न आए, वो पहले से प्लानिंग करनी होगी, वो पहले से, वो 10, 15, 20 साल पहले करना होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन ज्यादा करना होगी, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ये ज्यादा शॉर्ट टर्म, ये जो डॉक्टर है उसको किस तरीके डॉक्टर पर ले जाएं, या वो इलाके को डेवलप करें, या तो कुछ ऐसे प्लांट वहाँ ऐसे क्रॉप्स वहाँ करें जो उसी ज़्यादा पानी में हो, या सॉइल की टेस्ट की जाए ज़मीन की, उसमें ज़मीन नमकियात वगैरह होगी तो उसी हिसाब से की जाए। ये शॉर्ट टर्म है। अच्छा, तो इस तरीके से हम सॉइल को इस तरीके से हम उसी को सॉइल को पेस्टिसाइड लगा के ऐसा कर सकते हैं। यानी जो ऐसा महसूस हो रहा है, ये हम समझ रहे हैं कि इस फ्लड से या मौसमियाती तब्दीली से हमारे इर्द गिर्द का माहौल इतना वर्स्ट हो चुका है या और ज़्यादा मतलब नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। इसको हम किसी हद तक अपने ट्रीटमेंट से
कर सकते हैं, साइंटिफिकली उसको कर सकते ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाँ। उस जगह को, उस ज़मीन को, उस एरिया को, वहाँ के लोगों को जो साइंटिफिकली हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उससे कुछ बेहतरी हो सकती है। ज़मीन को काबिल बनाना है, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा पानी था तो हमें पता है वहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे थे हम फॉरेस्ट या प्लांटेशन या क्रॉप्स वो कम होंगे, तो ये वहाँ ऐसी ज़मीन को कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा एक्सपेंसिव। लॉन्ग टर्म ये है तो ज़्यादा प्लांटेशन करें सारे, इसमें एक एरिया में सिंध में जहाँ फ्लड आया फॉर एग्जाम्पल, जिसने कम से कम यहीं ज़्यादा करें, नहीं तो सारे पाकिस्तान में ज़्यादा करें, उसी में वो फ्रेंडली प्लांट करें जो सबको फायदा दे, सब प्लांट को अडॉप्ट कर सके। जो ऊपर से रेज आ रही है ना, हम लोग प्लांट क्या करते हैं, मॉइस्चर ऊपर भेजते हैं, जी जी, मॉइस्चर कहते हैं उसको, पानी, मॉइस्चर पानी है, जी जी, पानी को ऊपर ज्यादा भेजते हैं जी, तो वो कंट्रोल कर सके उसको, ऐसे भी प्लांट वहीं ऊपर रोक सके, वहीं ऊपर रोके रेज जो पानी आ रहा है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। सही सही, ये लॉन्ग टर्म है, ये बिल्कुल सही। अच्छा, ये शजरकारी पे तो हमारे बड़ा स्ट्रेस है, हमारी हुकूमत भी इस पे बहुत ज़ोर दे रही है, और ये शायद हमारे लोगों में ये एहसास उजागर करने की ज़रूरत है कि वो यकीन इस पे रियलाइज़ कर रहे हैं अब कि हमें बहुत ज़रूरत है शजरकारी करने की, तो इससे भी कुछ बेहतरी आप समझते हैं कि आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है एडॉप्टेशन और दूसरा होता है रेजिलियंस। तो हमें एडॉप्टिव होना पड़ेगा। देखिए जो तगय्युर आ गया है और आता चला जा रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं, यानी हर चीज़ हमारे बस में भी नहीं है। कुर्राए अर्ज़ जो है, इसमें पूरी दुनिया बस रही है, इसमें फिर बहुत लंबी तवील एक बहस है कि ये क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों है। यकीनन ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलराइज्ड हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इसमें बहुत बड़ा मतलब इसमें भी हमारी ही कहीं ना कहीं कोताही है। एग्जैक्टली, तभी हमने जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन बहुत ज़्यादा हो गई, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जैसे डॉक्टर सूजो साहब फरमा रहे थे कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन भी इसी वजह से हुई है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वो जहाँ बहुत सी ब्लेसिंग्स लेकर आया, वहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट भी आए। हमने उन साइड इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट नहीं किया, उसको हमने एड्रेस नहीं किया, हमने बेजा इस्तेमाल किया है इन एयर कंडीशनर्स का, रेफ्रिजरेटर्स का। इन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी तो पुरआसाइश बना दी, लेकिन साथ ही साथ उनके जो मुज़र असरात थे उनको रोकने के लिए हमें एडॉप्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, वो हम नहीं ले पाए। एक तरफ हमने इन फैसिलिटीज़ से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को आसान बना दिया, इससे फ़ायदे तो लिए, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का ना हमें अंदाज़ा हो सका और ना हम उसकी रोकथाम के लिए कुछ कर सकें। एग्जैक्टली, ये ऐसा ही है कि अगर आप खुदा न ख्वास्ता किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, और वो डायबिटीज़ की दवाई ले और उसका एहतियात करना चाहिए ना, अगर वो ना करे और उस पर केक खाता जाए, मीठा खाता जाएगा, तो डेफिनेटली डिजास्टर होना है, डेफिनेटली उसकी जान पे शदीद खतरात आएंगे ना। तो इसी तरह से जो कुराए अर्ज़ की सेहत थी ना, वो यही था कि नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, जो जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, उन सब का आपस में बाहिमी रब्त था जो बैलेंस रख के हुआ था। उस नेचर को जब हमने डिस्टर्ब किया है तो ज़ाहिर है नेचर ने हमें अटैक बैक किया है, तो उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हुआ। उसमें कई बार तो हम डूब रहे हैं और कई बार हम सूख रहे हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, फिर इसमें अर्थक्वेक, फिर सुनामीज, फिर ये साइक्लोन्स और बीसियों और तरह से ज़मीन जो है वो अपने दिखा रही है, हमें रंग दिखा रही है। तो ये हमारा तर्ज अमल तो यही है, क्योंकि हम इसको दुरुस्त करना थोड़े से इस मामले में तवज्जो कम देते हैं, या ये कि देर से देते हैं तवज्जो, तो हमारा रवैया तो यही रहेगा। एक तो हमें एडॉप्टेशन करनी होगी, दूसरा रेजिलियंस पैदा करनी होगी, यानी जैसे हालात हैं तो उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। उसको हमने जैसे तहम्मुल और बर्दाश्त होता है ना, इसी तरह से मिसाल के तौर पे अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया है, अब दर्जा हरारत कम करने के लिए तो डेफिनेटली प्लांटेशन, फॉरेस्ट और जैसे सूजो साहब ने कहा वो होना चाहिए, लेकिन चले वो जब तक हो, वो लॉन्ग टर्म है, तो कम से कम हम अपने आप को उस जो है वो गर्मी से तो बचाएं, यानी हम कड़कती हुई धूप में बाहर तो ना निकलें, अगर निकल रहे हैं तो हमें खुद को करनी होगी, तो हम कोई अपने आप को उससे सूरज की तपश से डायरेक्ट से बचाएं, या ठंडे कपड़े को या ठंडी कोई चीज़ उससे अपने आप को सर पे रख लें, यानी ऐसी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो तो हमारे बस में है ना, वो हमें करनी चाहिए। और इसको तभी होगा जनरली जब हम अवेयरनेस देंगे लोगों में, जिस तरह से आज हमारा ये रेडियो पाकिस्तान की प्रोग्राम जा रहा है, लोग जो सुन रहे हैं वो उन खुद को भी इन तजावीज़ पे अमल करना चाहिए और ये मैसेज औरों को भी देना चाहिए। जब सब मिलके अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो यकीनन हम जो ये इतनी तेज़ी से आती हुई तब्दीलियां हैं, मौसमी तब्दीलियां, उसके ना सिर्फ सेहत बल्कि दीगर जितने भी हमारे ज़िंदगी के एस्पेक्ट हैं वहाँ उसके असरात हो रहे हैं, उसको हम काफ़ी हद तक
روک سکتے ہیں, اس سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر سوجمل, یہ ابھی جیسے ڈاکٹر گلزار عثمان نے بتایا کہ یہ اس طرح ہم کچھ تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں, تو آپ کے بھی ذہن میں یقیناً کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو پریکاشنز ہوں گے جو ہم لے کے اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور مزید یہ کہ اب جو ہو گئی ہیں بیماریاں ان سے کیسے, ہاؤ ٹو کم آؤٹ, ان سے باہر کیسے آئیں. اچھا یہ ہے تو ابھی تھوڑا اپنی لیونگ جو اسٹینڈرڈس ہے وہ تو رہیں گے, سیم رہیں گے, مگر لیونگ اسٹائل ہے نا وہ چینج کرنا ہوگے. کہ اسٹینڈرڈ ہم جو جتنا کھانا کھا رہے ہیں, اگر جس کے پاس انڈسٹری ہے وہ بند نہیں کرے گا, وہ چلائے گا. ڈاکٹر گلزار صاحب میں ایڈ کر لوں تو دنیا میں جب انڈسٹری آئی تھی نا, جو فلاسفر تھے, جو سائنٹسٹ تھے ارتھ کے, زمینی جو سائنٹسٹ تھے ان سب لوگ نے مخالف کی تھی. اچھا, کیونکہ آئیڈیا تھا کہ آگے مخالف ہوگی, تباہی ہوگی, کیونکہ بگر انڈسٹری والوں نے یہ کہا ہم لوگ دنیا میں بھوک ختم کر رہے ہیں. اچھا ایسا ہے, اسی آگے ایسا ہے بھی, لیکن وہی بات ہے کہ یہ شہروں سے دور ہونی چاہیے تھی. اب وہ ایک تو یہ کہ شہروں سے دور اگر تھی بھی تو اب شہر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ شہر کے اندر آ گئے. اچھا اب اس کو وہاں سے آگے شفٹ کرنے کا بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے, کیونکہ وہ ابھی بھوک ختم بھی نہیں ہوئی, اور مسائل حل ہوئے دنیا میں. جی ہاں, اور جو مسائل اتنی بے روزگاری, اتنی چیزیں بڑھی, اس کو آبادی بڑھ گئی, اتنی آبادی بڑھ گئی, ہم اسٹائل چینج کرنا ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم پانی 10 گلاس پی رہے تھے, 8 گلاس پی رہے ہیں, تو یہ 9 کر لو, کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اسی طرح 8.5 کر لو. جی ہاں, اب یہ لیونگ پہ بات آئی اب تو یہ بڑا اچھا یاد آیا, چونکہ ہمارے پاس زمینی رقبہ بہت زیادہ ہے, ہم پھیل کے کیوں نہیں رہتے. ہم ہاریزونٹل بلڈنگز بنا رہے ہیں, ہائی رائز بنا رہے ہیں, اور 18 منزلہ 22 ورٹیکل ہم جا رہے ہیں, اوپر کی طرف جا رہے ہیں نا, ورٹیکل ہاریزونٹل نہیں جا رہے. ہاریزونٹل جانا چاہیے ہمیں, ہاریزونٹل چاہیے, تاکہ وہ کیوں نہیں چاہیں, وہ ہم لیونگ اسٹینڈرڈ کے محتاج ہیں. اچھا جی, میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نان ماڈیفائبل ہیں یا ہماری مطلب ایکسس میں نہیں ہے. ہماری خواہش تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ ممکنات میں نہیں آتی یا بہت مشکل ہے. تو اس میں ایک چیز, بلکہ سچی بات تو یہ کہ شاید ہم اس پہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو دنیا میں انڈسٹریل چیزیں ہیں یا بڑھتی ہوئی آبادی ہے, یا ایک سب سے جو اہم مسئلہ وہ ہے اربنائزیشن. دیکھیں اربنائزیشن ایک بلیسنگ ہے, اچھی چیز ہے, لوگوں کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں, سہولیات ملتی ہیں, تعلیم, صحت اور یہ سب چیزیں, روزگار, لیکن وہ اگر ان آرگنائز طریقے سے ہوگی, ان کنٹرول طریقے سے ہوگی, تو پھر سلمز پیدا ہوں گے, اور پھر یہ شہروں, بڑھتے ہوئے شہر ہوں گے, اور سکڑتی ہوئی زمین ہوگی ہماری. اور وہ سوجو صاحب کی بات کہ 5% دھرتی پہ 70% پاپولیشن رہ رہی ہے, تو وہ کتنا ایک دوسرے پہ کتنا اسٹریس ہوگا, ہمارے نیچرل ریسورسز پہ بھی اسٹریس ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ کے حوالے سے اگر صحت کی بات کی جائے تو پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بچاؤ جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو خاص طور پہ اس میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اگر صحت کے اثرات پڑ رہے ہیں, اور حشرات الارض جیسے مچھروں کے کاٹنے سے اگر بیماریاں پھیل رہی ہیں, یا بیماریاں جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہیں, یعنی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, ڈراپلیٹ انفیکشنز ہیں, ٹیوبرکلوسز ہے, یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے, ہمارے پانی خاص طور پہ, کیونکہ فوڈ بورن اور واٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں, اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں کلائمیٹ چینج سے جڑتا ہے, انوائرمنٹل ایشوز ہیں یہ. اور ہمارا جو ارد گرد ہے, ہمارا اپنا پرسنل ہائیجین, اور ہمارے ڈومیسٹک یعنی ہمارے گھر میں اور ہماری گھروں کے قریب قریب جو علاقے ہیں, وہ سب اگر ان کی صفائی کا ہم خیال رکھیں, اور جو ہے وہ جیسے ہی خدا نخواستہ کسی کو اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس کا ایک دم سے اس کا علاج کیا جائے, احتیاطی تدابیر کی جائیں, تاکہ وہ ایک سے دوسرے کو نہ لگے. اگر وہ لگتی ہیں تو پھر وہ وبائی صورت اختیار ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچیں گے تو یقیناً ہم جو کلائمیٹ چینج کے جو مضر اثرات ہیں صحت پہ, ان سے کافی حد تک بچاؤ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر سوجمل صاحب, ڈاکٹر گلزار عثمان صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے اپنے میزبان اقبال قاضی کو. اللہ حافظ. سامعین, ابھی آپ موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان کے سلسلے میں مذاکرہ سن رہے تھے. آج کا موضوع تھا موسمیاتی تبدیلیاں اور انسانوں کی صحت. شرکائے گفتگو تھے پروفیسر ڈاکٹر سوجو مل اور ڈاکٹر گلزار عثمان. میزبان محمد فاروق اقبال, پروڈیوسر محمد عارف. پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد.